what is virtualization basically like. It's basically or I can say this as a conversion of like a hardware into like software, or like splitting the hardware resources into as many logical resources as we want. So here the VMware vSphere helps us in this doing this efficiently, as it is a software and all. So that's the basic understanding I'm having of. Did you perform any task related to ESXi host installation, managing virtual machine under the ESXi or vCenter server? Yeah, I have created some as actually I was not having that many resources on my laptop. Mm-hmm. So but yes, I created some of the like some of the virtual machines like this ESXi and all. I tried to do it from my end, like installation and just like connecting it and creating some VMs in the ESXi. Okay, great. Means you have a idea about how the inventory of ESXi look like, right? Yes, yes, sir. Great, great. Not an issue. We'll try to start from the very basic. We'll start from the understanding of ESXi host. Then we'll proceed to manage our storage, domain controller, vCenter server, HA, DRS, clone, template. Each and every point we will discuss about the concept of VMware virtualization. Right? Right, sir. Right. Okay, so I hope you're able to see my screen. Let me help you to understand about the basic of virtualization, and according to that we'll proceed for the next step. The one of important point, I think I have already shared the content that we need to cover in our training, right? Di- No, sir. I didn't get the content. no problem, I'll mail you the proper roadmap of our training, No means worries. Yeah. how Sure, we sure. can start. But now this is the day one of our session, so we just need to start from the very basic, like as a we just need to know about the concept of virtualization. So not only the ESXi in market, we have a number of applications or tools are available that help us to manage the virtual environment, like as a ESXi, Zen server, OpenStack, hypervisor. These all are the tools that help us to manage the virtual environment, right? But question we should know about to base of virtualization, why any organization prefer to set up the virtual environment, what are the tools are required to establish our virtual setup, and how we can use the resources or how we can use the services which are available in virtual application. So for better understanding, I'm just going to categorize in two different parts. The first one is like as why we need to use, I'm talking about the work based, why virtualization important for any work environment, and second we'll discuss about technology, the meaning of technology based, how many types of virtual environment we have, how many types of services we have to set up the virtual environment. Is that okay? Okay. Yes, Okay. sir. As per the name suggests, the meaning of work based, the name of work based is basically what are the activity we are able to perform through the virtualization. Means what are the points that we need to cover in case of virtualization, why any organization set up our virtual environment. So these all are the points that we will discuss in case of work based. So as per the name suggests, the meaning of work based is basically correlated to the we are able to use virtualization for memory, we can use the virtualization for storage, for CPU management, software management, and drivers management. Not only the drivers, we are able to use the virtualization environment through for network management as well. Clear? Yes, sir. Okay, I hope you're comfortable with Hindi as well. Both, yeah. Yes, sir. Okay, great, great. Because what happened? So few things we need to understand in our own language. So No worries. Yeah, yeah. okay. So in case of I'm work, really sorry. okay. So in case of work based, the name suggests, as per the name suggests, the meaning of work based means which types of task you are able to perform with the help of virtualization. Like
we have already mentioned about the memory. So memory in the sense, for example, you have a one system with very good configuration with capacity of maybe 64 gig of RAM, 8 core of processor, 500 gig of hard drive. This is the configuration of your laptop or desktop, and you wanted to use the same hardware, you wanted to utilize your same hardware to manage your virtualization. सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप है अपने पास, या ये जो कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप या लैपटॉप अपने पास है विद 64 gig ऑफ रैम एंड ऑल. सो Yes. 64 gig RAM is a huge amount, right? If we talk about Yes. the total capacity of 64 gig RAM, and आपने सिर्फ 64 gig में केवल Windows 10 इंस्टॉल कर रखा है, तो I don't think कि you are able to utilize the entire 64 gig of memory for Windows 10 only. बिकॉज सर्वर में तो सोचा जा सकता था कि ठीक है, सर्वर में 64 gig रैम इनफ नहीं है, बिकॉज वी हैव एन नंबर ऑफ सर्विसेज लाइक AD, DSCP, DNS, IaaS, multiple options are available in Windows Server. But for Windows 10 I don't think 64 gig हमें किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती होगी. If it is not a graphic, if it is not a kind of a gaming machine, अगर गेमिंग मशीन नहीं है, ग्राफिक्स रिलेटेड आप टास्क नहीं परफॉर्म करते, तो 64 gig प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नाउ वी हैव ओनली सिंगल मशीन विथ 64 gig रैम, एंड यू वांटेड टू यूटिलाइज द 64 gig रैम फॉर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप इसको वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से छोटे छोटे पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. यू कैन डिवाइड योर 64 gig रैम विथ कैपेसिटी ऑफ 8 gig रैम. You can divide into 16 gig of RAM. You can divide into 4 gig of RAM. ये सभी पार्ट आप वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से डिवाइड कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? Yes, sir. सेम 64 गिग को हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर दिया है. हर एक मशीन को हमने, किसी को 8 GB की रैम, किसी को 16 GB की रैम, किसी को 32 GB की रैम, किसी को 4 GB की रैम हमने असाइन कर दी उसी 64 गिग रैम से जो बेस मशीन में हमारा बिल्ट इन है. इज दैट क्लियर? Yes. This is the work basically. This is the work of virtualization. So not only the memory, with the help of our virtualization we are able to divide the storage part as well. The capacity of our storage may be 1 TB and you wanted to share the same 1 TB space with multiple virtual machine. We can do that and virtualization can help you. इस केस में वर्चुअलाइजेशन हमारी हेल्प करेगा कि आप अपने इस स्टोरेज 1 TB के स्टोरेज को मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल कंप्यूटर्स या वर्चुअल मशीन्स के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. Divide कर सकते As it is for CPU, for example, we have a 8 core of processor and you wanted to divide your 8 core of processor with multiple computers, multiple virtual machines. The virtualization can also help us, right? So in single word you can say that the usage of virtualization in case of work based, with the help of virtualization we are able to utilize our single configuration of a single hardware configuration. We can distribute with multiple virtual machines. फिर चाहे वो मेमोरी की बात करें, स्टोरेज की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स की बात करें, या फिर हम नेटवर्क इन्वायरमेंट की बात करें, बाय यूजिंग सिंगल हार्डवेयर, एक सिंगल हार्डवेयर को हम मल्टीपल वर्चुअलाइजेशन, मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सकें. प्लस ईजी टू मेंटेन, ईजी टू मैनेज द एंटायर वर्चुअल मशीन. हर एक मशीन पे आपको इंडिविजुअल जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको सिर्फ बेस मशीन को ओपन करना पड़ेगा. बेस मशीन से यू आर एबल टू कंट्रोल ऑल द VMs दैट यू क्रिएटेड. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Great. Now let's talk about technology based. So, as per the name suggests, the meaning of technology based is related. It's also categorized in two different part. The first one is hypervisor type 1 and hypervisor type 2, right? Yes, sir. Hypervisor type 1 and hypervisor type 2. So can you please explain me the difference between these two important point? Type 1 और type 2 को कैसे? जी, दो हाइपरवाइजर, एक होता है बेयर मेटल होता है जिसमें वी डोंट हैव एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग एंड बेसिकली द सॉफ्ट इट रन्स ऑन बेस दिस
directly on the hardware without any existing operating system. And another one of the hypervisor is something that is working via the software that is working on an existing this क्या बोलते हैं इसको existing operating system. So basically एक में हमारा होता है जिसमें हमारा operating system नहीं होता है, that is bare metal. Mm-hmm. And other one that is created on the operating system, we can say for example like workstation. And for a bare metal virtualization, bare metal के case में we can say ESXi and other types like the V and all. Great. Hypervisor type 1 considered as a bare metal, right? Yes. It's a type of bare metal virtualization. और जो hypervisor type 2 है ना, इसको हम hosted virtualization बोलते हैं. Hosted, yes. ठीक है. एक अपने पास bare metal virtualization है and second one is related to the hosted virtualization. As per the name suggests, the meaning of bare metal virtualization, for example, this is our hardware, right? Hardware in the sense the high configuration machine that you install without OS. We don't have any operating system in this PC. ठीक है, इस मशीन में कोई भी operating system available नहीं है. It's a fully blank. You can say that it's a based on what we can say that DOS operating system. We don't have any operating system installed on this machine. So we have a n number of software, not software. इनको हम सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, इनको हम यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ESXi, Zen सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V, यू नो दैट अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V जो हमारे विंडोज सर्वर, विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल रहता है. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन. इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज वी आर एबल टू इंस्टॉल इट डायरेक्टली टू द हार्डवेयर. चलो नेक्स्ट, होस्टेड वर्चुअलाइजेशन. द मीनिंग ऑफ होस्टेड वर्चुअलाइजेशन इज रिलेटेड टू, फॉर एग्जाम्पल, we have a one desktop with high configuration, but the system should be contain at least one operating system. पहले से इसके पास एक OS होना चाहिए. It may be Windows, it may be Linux, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपके उस बेस मशीन पे at least one operating system must be installed. ठीक है. Yes. Now talk about the number of applications, number of examples related to the hosted virtualization. So we have a number of examples like as you know very well about workstation, right? Yes. VMware का एक टूल है VMware वर्कस्टेशन, वर्चुअल बॉक्स ओरेकल का, एंड वर्चुअल पीसी भी है. ठीक है. एंड VMware Fusion. ठीक है. These all are the examples related to the hypervisor type 2. इन सभी को हम बोल सकते हैं कि ये सभी examples जो है हमारे hypervisor type 2 से relate करते हैं. Is that clear? Yes, sir. Basic understanding. This is virtualization. We are trying to understand about the concept of work-based and technology-based. As per the name suggests, the meaning of work-based, the task that we are able to perform with the help of virtual environment, and the meaning of technology-based, as per the name suggests, it is categorized in two different parts. दो part में इसको categorize किया गया है. The first one is related to bare metal virtualization, जिसको हम हाइपरवाइजर टाइप 2 के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू द होस्टेड वर्चुअलाइजेशन. ठीक है. बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन एंड होस्टेड वर्चुअलाइजेशन. ठीक है. दो पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया. Yes. सर टाइप 1 में बेयर मेटल होता है, टाइप 2? टाइप 1 इज अ बेयर मेटल. टाइप 1 इज बेयर मेटल. ओके. क्लियर. हाँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि टाइप 1 रहता है कि टाइप 2. तो ऑलवेज कंसीडर पहला जो रहेगा ना, टाइप 1 जो रहेगा वो आपका कहलाएगा बेयर मेटल, जो टाइप 2 रहेगा वो होस्टेड कहलाएगा. सिंपल सा. होस्टेड. क्लियर.
Okay, Yes. so this is the basic understanding of our virtualization, virtual setup. But if you really want to be an expert in virtualization, means अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्चुअल सेटअप को हैंडल करने के लिए, तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आता है कि वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर टू सेटअप अ वर्चुअल इन्वायरमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको बेस से Right. अगर आपको बेस से आ, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना आ गया, तो अप टू 60% ट्रबल शूटिंग आपको अपने आप सेटअप करते समय ही क्लियर हो जाएगी. Yes. ठीक है, कि बिकॉज यू नो दैट कि जब आप चीज़ों को अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हुई है सक्साई के, आप शेयर स्टोरेज भी हैंडल कर रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज डोमेन, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इंस्टॉल द वी सेंटर सर्वर, HADRS. जब आपने सारी चीज़ें अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर रखी है, तो आपको पता है कि इशूज़ कहाँ पे आ सकते हैं, या फिर जो भी इशूज़ आए हैं उनको आप आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये इशू आ रहा है तो पक्का ये ESXi का इशू होगा, ESXi में चेक करना चाहिए, या फिर डोमेन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वी सेंटर सर्वर में कोई सर्विस डाउन हुई है जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी वर्चुअल सेटअप. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेस है, जो मेन इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं या फिर हार्डवेयर्स हैं, उनके बारे में पहले देख लेते हैं. वी हैव आई एम जस्ट गिविंग यू द वन एग्जांपल लाइक एज दैट वी विल यूज इन आवर ट्रेनिंग एज वेल, क्योंकि हम ये सेम सेटअप यूज करेंगे. सो व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट? इट्स मैंडेटरी टू सेटअप मोर देन वन ESXi. इट्स मैंडेटरी. अगर आप सारे प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो 2 ESXi अपने पास होना चाहिए. एक वी सेंटर सर्वर आपने लगाना पड़ेगा, एक डोमेन आपने लगाना पड़ेगा, एंड एटलीस्ट 2 डिफरेंट शेयर स्टोरेज. अपने इन्वायरमेंट में कम से कम 2 शेयर स्टोरेज आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे इन आवर ऑन प्रोमाइसेस इन्वायरमेंट. इंटायर सिस्टम्स, इंटायर सर्वर्स, वी सेंटर सर्वर, ESXi सर्वर, डोमेन इन्वायरमेंट जो AD हमने इंस्टॉल कर रखा है, ये सभी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है, 2 वी सेंटर, 2 शेयर स्टोरेज, ये भी आपके कनेक्टेड है. दिस इज आर ESXi होस्ट 1. ये अपने पास है ESXi होस्ट 2, वी सेंटर सर्वर, और ये अपने पास है डोमेन कंट्रोलर, ADDS जिसको हम बोलते हैं, एंड ये अपना है शेयर स्टोरेज 1 एंड शेयर स्टोरेज 2. This is the infrastructure base of any virtual infrastructure. मीन्स एटलीस्ट इतना आइडिया तो हमें होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना है तो हमारे पास ये ऑप्शंस होने चाहिए. ये इन सभी के बारे में डिटेल्स हमें मालूम होनी चाहिए. नाउ Right, sir. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैनेज करेंगे. तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये होगी, विल स्टार्ट फ्रॉम द ESXi मैनेजमेंट. हमें सबसे पहले ESXi मैनेजमेंट से स्टार्ट करना है, ESXi होस्ट से स्टार्ट करना है. वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ ESXi, देन विल मूव आवर सेल्फ टू द शेयर स्टोरेज. दूसरा, तीसरे नंबर पे हम डोमेन को मैनेज करेंगे. चौथे नंबर पे ESXi नेटवर्किंग आएगा, स्टैंडर्ड स्विच, क्योंकि ESXi में सिर्फ स्टैंडर्ड स्विच का एक्सेस मिलेगा. और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे वी सेंटर सर्वर के बारे में. We center server. तो टोटल जो मॉड्यूल आप बोल सकते हैं ना कि ये हमने 5 डिफरेंट मॉड्यूल में कैटेगराइज कर दिया है. पहला मॉड्यूल ESXi है, दूसरा मॉड्यूल शेयर स्टोरेज है, तीसरे मॉड्यूल में हम बात करेंगे डोमेन कंट्रोलर के बारे में, और चौथा मॉड्यूल रहेगा नेटवर्किंग ESXi का. 5वां मॉड्यूल हम बात करेंगे लास्ट जो होगा वो है कोर वी सेंटर सर्वर, जिसमें HADRS, फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, माइग्रेशन, vMotion, SVMotion, ये सभी एक्टिविटीज़ विल परफॉर्म इन आवर वी सेंटर सर्वर इन्वायरमेंट. इज दैट क्लियर?
Yes, sir. तो व्हाट वी नीड टू डू, विल स्टार्ट फ्रॉम द ESXi, बेस से स्टार्ट करते हैं, ESXi से स्टार्ट करते हैं, और वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ ESXi विल मूव टू शेयर स्टोरेज। और ESXi में इतनी सर्विसेज हैं कि एटलीस्ट हमें कम से कम मे बी कि इट रिक्वायर्ड 2 to 3 सेशंस, 2 से 3 दिन लग जाएगा ESXi को समझने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि शेयर स्टोरेज भी ESXi के अंदर ही कॉन्फ़िगर करेंगे ना। चलो लेट्स स्टार्ट विद ESXi होस्ट। Yes. Any question about the basic of ESXi, basic of virtualization जो हमने इसके पहले स्लाइड में डिस्कस किया था? Any doubt, Sir, any ये question? जो environment हम create करेंगे, हाँ, so this is basically hosted एक तरह से type 2 ही होगा ना, तो ये जितना हमें डेफिनेटली वी नीड टू यूज़ द टाइप 2, क्योंकि अगर मैं बेस मशीन पे type बेयर मेटल पे इंस्टॉल भी करूँगा ना, तो जी जी इट विल कंज्यूम द एंटायर मशीन, entire machine, right? है ना, या फिर डुअल बूटिंग बना के करें कि कभी इसको टर्न ऑन किया कभी उसको टर्न ऑन किया। बट जब आप वर्क स्टेशन में परफॉर्म करोगे चीज़ों को ना, तो वर्क स्टेशन में जी बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको हर एक स्टेप देखने को मिल जाएगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर रहे हो ये right ESXi, sir. कैसे उसका GUI आप एक्सेस कर रहे हैं और कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो, राइट। तो ये थोड़ा सा मीन्स प्लस पॉइंट हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में कोई जी जी मीन्स डिफरेंट नहीं रहेगा, चाहे आप वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल करो या फिर आप व्हाट वी कैन से दैट इन आवर Hyper-V पे इंस्टॉल करो, ठीक है। जी 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 ओके, जस्ट अलाउ, चीज मैं जानना चाह रहा था या या सर, इन केस ऑफ दिस ये बेयर मेटल जो हमारा रहता है तो टाइप 1 का, जब हम ये एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल जैसे एनवायरनमेंट में जैसे हमारा ESXi हो गया और ये डोमेन एंड vCenter सर्वर हो गया, अगर हम इसको बेयर मेटल में कंसीडर करते हैं तो हमें लाइक इसके लिए मल्टीपल सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है या एक ही में हमें नहीं, वी मस्ट प्लेटफॉर्म नीड टू सेट अप सर्वर, जितने भी आप नंबर ऑफ ESXi लगाएंगे उतने नंबर ऑफ आपको फिजिकल सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। ओके ओके इस तरह से होगा एंड उसी के अंदर ही हम लोग डोमेन के लिए जैसे डोमेन कंट्रोलर जैसे यूज करना डोमेन कंट्रोलर भी लगाना है तो उसके लिए भी हमें अलग से हाँ बिल्कुल सेपरेट बिल्कुल, मशीन्स लगानी होती हैं हाँ बिल्कुल, हम जितने हमारे सेपरेट रखेंगे। सर्विसेज हैं उतने अलग अलग हमें वो लेने पड़ेंगे हाँ, एक्चुअली क्या होगा ना कि ओके आप मल्टीपल ESXi एक मशीन में तो लगा सकते हो, बट उसका यूसेज नहीं रहेगा। और थिंक अबाउट, अगर सर्वर डाउन हो गया तो हमारी सारी की सारी ESXi डाउन हो जाएगी। राइट राइट सर फिर वी आर अनेबल टू क्रिएट द HA DRS का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सारी ESXi एक ही मशीन पे चल रही है ना। तो दैट्स वाई इन रियल इन्वायरमेंट यू शुड परचेज द फिजिकल सर्वर टू इंस्टॉल द ESXi होस्ट आर vCenter सर्वर, ठीक है। ओके ओके चलो लेट्स प्रोसीड फॉर, एक्चुअली सर मैंने डेल पे मैंने थोड़ा काम किया था लाइक हार्डवेयर माउंटिंग वगैरह का हाँ हाँ तो हाँ हाँ मैं हाँ, थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि मतलब मुझे ये मतलब इंस्टॉलेशन के पार्ट से मुझे थोड़ा वो आइडिया नहीं था बट आई नो हाउ टू लाइक हार्डवेयर माउंटिंग वगैरह का तो ठीक है बट इसमें कैसे चीज़ें होती हैं लाइक हाउ द सॉफ्टवेयर आर इनबिल्ट मतलब कैसे हमें डालना है कितना तो वो चीज़ में थोड़ा सा हाँ गॉट इट, मैं समझ गया, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें बेस से ही स्टार्ट करेंगे, नो वरी अबाउट इट। तो उसमें जी जी कंपेयर करते चलेंगे कि अगर आपके पास डेल का सर्वर है या HP का सर्वर है, एसर का सर्वर है, या जी आपने जी कोई अपना खुद से असेंबल करा रखा है, तो उनमें क्या इम्पैक्ट होता है सर्वर पे अब जब आप इंस्टॉल करते हो राइट और राइट सर हाइपरवाइजर 2 का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इंस्टॉल होगा, ठीक है। जस्ट अलाउ मी 2 मिनट, जस्ट अलाउ मी 5 मिनट, बिकॉज या आई नीड श्योर टू टेक योर टाइम इंस्टॉल द VMware वर्क स्टेशन। और बेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पुराना जो सेटअप है वो पुराने बैच के लिए, तो आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। जी जी जस्ट अलाउ मी 5 मिनट। हाँ श्योर सर टेक योर टाइम हाँ, नो वरीज या हेलो फैज, कैन यू हियर मी? यस सर ओके, okay, this is our base machine, our workstation that I established on my uh, desktop. इसमें मैंने एक टूल इंस्टॉल कर रखा है, VMware Workstation 16 Pro, and with the help of this particular tool we are able to set up our infrastructure for VMware virtualization. ESXi इंस्टॉल करने की बात करें
या फिर इसमें कोई अदर सर्विसेज लाइक एज वी सेंटर सर्वर डोमेन, ये सभी टॉपिक हम इस पर्टिकुलर टूल के जरिए इंस्टॉल कर पाएंगे. इज दैट ओके? So just wanted to clear which version of ESXi you wanted to learn. So latest वाला जो है. Okay, let me explain you about the number of versions are available in ESXi. So I'm going to start from the very basic about the concept of VMware ESXi host. अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. VMware vSphere ESXi. So we should know about the history of ESXi, how many types of ESXi hosts are available in market, and that features of ESXi host, क्या gap है, अगर हम ESXi का वर्जन चेंज करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है. These all are the points that we need to discuss in case of vSphere ESXi host. ठीक है. So if we talk about the version of ESXi host and number of version of ESXi host available, introduced from 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.0 update, 6.5, 6.7, 7.0 and 8.0, right? 8.0. ये अपने पास ESXi होस्ट के वर्जन बोल सकते हैं कि मीन्स इतने नंबर ऑफ ESXi होस्ट VMware ने अभी तक रिलीज़ किए हैं. ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ये इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए. नाउ 6.0 अपडेट टू 8.0 ये आपके लेटेस्ट में काउंट किए जाते हैं, because they provide us a different features in compare of old version of ESXi host. ठीक है. So now talk about the gap between the ESXi 4.0 to 6.0 and 6.0 to 8.0. इनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है. अगर आपने कोई भी ESXi होस्ट ओल्ड वर्जन पे इस्टेब्लिश कर रखा है, लाइक दिस इज आवर ESXi होस्ट, ओके, it may be based on between 4.0 to 6.0. अगर आपके पास ऐसे ओल्ड वर्जन के ESXi होस्ट हैं तो we are able to access these ESXi using different method. क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं? We are able to access through CLI के थ्रू इनको एक्सेस किया जा सकता है, जिसको हम SSH बोलते हैं. ठीक है. We are able to access the ESXi through the vSphere client. ठीक है. आपको vSphere client अपने बेस मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ता था अगर आपके पास ओल्ड वर्जन ऑफ ESXi है. ये इंस्टॉल करेंगे पर्टिकुलर मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर, एंड देन यू आर एबल टू एक्सेस द GUI. और यू नो दैट विदाउट GUI यू आर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क. VM बनाने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा. इट विल गिव अस ऑप्शन टू एक्सेस द ESXi थ्रू द DCUI. ठीक है, डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस. The meaning of direct console user interface is, it means that with the help of this particular service or with the help of this particular method we are able to make a changes with the IP address of our ESXi. पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, DNS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लॉग निकाल सकते हैं, और इसमें मल्टीपल एक्टिविटी लाइक इथरनेट को डिसेबल या इनेबल किया जा सकता है. स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं DCUI. तो ये अपने पास मेथड थे इन केस ऑफ 4.0 टू 6.0 की ESXi के केस में. थिंक अबाउट इफ़ यू हैव अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ ESXi होस्ट. अगर अपने पास लेटेस्ट वर्जन के ESXi होस्ट आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल यू इस्टेब्लिश योर ESXi बेस्ड ऑन 6.5 और 7.0 और 8.0, इनमें से किसी भी एक ESXi को इंस्टॉल कर रखा है, तो इट विल प्रोवाइड यू अ डिफरेंट वे टू एक्सेस अवर ESXi होस्ट, जिसमें से
पहला जो मेथड होगा, यू कैन से दैट वी आर एबल टू एक्सेस द ESXi थ्रू CLI. यस, इसमें भी CLI से एक्सेस कर पाएंगे, SSH जिसको बोलते हैं, बट इसके लिए आपको पोर्ट नंबर 22 ऑन करना पड़ेगा. दूसरा मेथड, नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ vSphere क्लाइंट. इसमें किसी भी vSphere क्लाइंट को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज दे ऑफर अस टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेब क्लाइंट. इसको हम किससे एक्सेस कर सकते हैं? वेब क्लाइंट. द मीनिंग ऑफ वेब क्लाइंट, आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उस ब्राउज़र पे ESXi होस्ट की IP प्रेस करेंगे, यूज़र ID पासवर्ड देंगे और इंस्टॉल कर देंगे. करेक्ट? Yes. ठीक है. नाउ अनदर पॉइंट इज DCUI. तो डायरेक्ट कंसोल यूज़र इंटरफेस, बिकॉज द सेटअप आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IP एड्रेस, ये हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है. Correct, sir. So web client बस एक difference इन दोनों में कि web client old version में use नहीं हो सकता, web client we can use it in the latest version. हाँ, पुराने में वेब क्लाइंट का काम नहीं था, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट VMware से दूसरा लाइसेंस, vSphere का लाइसेंस खरीदना पड़ता था, और जिस मशीन पे आप vSphere क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर पाएगा GUI को, बाकी के बंदे एक्सेस नहीं कर पाएंगे. क्लियर? अभी क्या है, करंट टाइम में क्या है, नॉट रिक्वायर्ड टू परचेज एनी काइंड ऑफ लाइसेंस. vSphere क्लाइंट का लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वी आर एबल टू एक्सेस वेब क्लाइंट. नाउ क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि द डिफरेंस बिटवीन vSphere क्लाइंट एंड वेब क्लाइंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो टेक्निकली जो गैप है दोनों के बीच में, आप बोल सकते हो कि vSphere क्लाइंट के केस में ना, vSphere क्लाइंट के केस में वी आर अनेबल टू अपडेट ऑटोमेटिकली. अब जो फीचर्स हैं उनको आप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं कर पाते थे. यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर विद मैनुअल अपडेट. आपको मैनुअल अपडेट करने की रिक्वायरमेंट होती थी. बट विद द हेल्प ऑफ आवर वेब क्लाइंट, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं ना, जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं, यू कैन डायरेक्टली अपडेट बाई सेल्फ. ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाता है. इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर हैं. अगर हम ओल्ड और लेटेस्ट की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं. फीचर्स में लाइक एज यू कैन से दैट कि पहले की ESXi में आप कोई भी कॉमन पासवर्ड रख दोगे, वो एक्सेप्ट कर लेता था. गॉट इट? कॉमन पासवर्ड की बात करें तो Yeah. व्हाट यू थिंक अबाउट द कॉमन पासवर्ड? Common मतलब without any complex हाँ, complexity, मतलब कुछ भी कुछ limit जिसमें limit ग्रे limit ना हो, like four digit हो सकता है, it can be like 5 digit. हाँ, Set of conditions नहीं होते थे उसमें. एग्जैक्टली. पासवर्ड की पॉलिसी नहीं अप्लीकेबल है, मीन्स उस पर कोई भी पासवर्ड की बैकएंड पॉलिसी नहीं लगी कि नहीं आपको इतना पूरा करना ही पड़ेगा. इट्स नॉट मैंडेट. बट फ्रॉम 6.7 ऑनवर्ड, ठीक है, 5 तक भी ऐसे ही चल रहा था. बट 6.7 के बाद से, ठीक है, 6.7 के बाद से आप जितने भी ESXi आप इंस्टॉल करेंगे ना, इसमें मैंडेट है कि आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देंगे. Complex password, yes, sir. और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड में मिनिमम 7 to 8 हाँ 8 कैरेक्टर रिक्वायर्ड, बट ठीक है. मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको अल्फान्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट Alphanumeric, और yes. नंबर्स Digital, और special characters. स्पेशल कैरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो ये अपने पास बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है. बट अगर हम बात करें और इसके अंदर और पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट्स इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि और फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेशन सपोर्टेड रहते हैं. लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं अपने पास, लेटेस्ट ESXi हैं, ये कोर ऑटोमेशन को सपोर्ट करते हैं. ऑटोमेशन इन द सेंस कि आपको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मैनुअली, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा. इट विल गिव अस ऑप्शन टू परफॉर्म द माइग्रेशन ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे. अगर आपको माइग्रेशन परफॉर्म करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं. आपको अगर रिलेटेड टू द मीन्स कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना है, लाइक डेवलपर से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना है, तभी ये हमारी हेल्प करेगा. ठीक है, Okay. okay, great. So these all are the points that we need to cover in our
ट्रेनिंग, बट नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें कौन सा पार्ट उठाना है. कौन सा पार्ट उठाना है इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द ESXi टाइप्स. कौन सी ESXi टाइप्स हम स्टार्ट करेंगे. ना इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ ESXi, तो ये अपने पास लिस्ट है, इन सभी लिस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं. सो व्हाट यू थिंक अबाउट विच ESXi यू वांट टू लर्न. So 8 we can go for it. 8 or we can proceed with 7. Okay, so दोनों different any different. नहीं, मैं as per my experience, because I'm working with VMware from last 8 years, तो I started my journey with VMware with 5.5. ठीक है, Okay. in year of 2016-17, yes. ठीक है. एक्चुअल में क्या है ना कि वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर वर्चुअलाइजेशन टू क्रैक द इंटरव्यू. करेक्ट. जो मेन एजेंडा है ना कि वी जस्ट वांटेड टू क्रैक द इंटरव्यू, कि कोई भी अगर वैकेंसीज आती है तो एटलीस्ट हम उसमें इंटरव्यूअर के सामने उसके क्वेश्चन का अच्छे से रिप्लाई दे सकें. Nowadays, most of organization establish their own infrastructure for virtualization using 6.5, 6.7 and 7.0. ठीक है. ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, they establish their infrastructure using these 3 different ESXi host. ठीक है. 6.0 भी मार्केट में उतना नहीं मिलेगा, 5.5 तो है ही नहीं अभी. ठीक है. 6 पॉइंट अपडेट भी नहीं है. 6.5 से स्टार्टेड कर सकते हैं, स्टार्टेड है. 6.5, 6.7, 7.0 और 8.0 they are planning to migrate because it's really Okay. latest OS, latest ESXi host. अच्छा. Okay. तो अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पुटअप भी करेगा ना, अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पुटअप भी करेगा तो वो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पुटअप करेगा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन 7.0 एंड 8.0. दैट्स इट. ठीक है. क्योंकि वी नो दैट ऑर्गेनाइजेशन के पास 8.0 का सेटअप नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा या तो 6.7 से या 7.0 से या 6.5 से. ठीक है. सो वी कैन प्रोस. हाँ, तो हम 7 पे रन करेंगे. इसका बेनिफिट ये है, ठीक है, 7 पे का बेनिफिट ये है कि इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ 8.0 और बाकी 6.5 और 6.7 दोनों के फीचर्स आपके 7 में ऑलरेडी इन्वॉल्व है. Right, sir. Okay. इज दैट क्लियर. Yes, sir. चलो, तो हम 7.0 से स्टार्ट करते हैं. 7.0 का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. एंड लेट्स इंस्टॉल वन ESXi होस्ट इन VMware वर्कस्टेशन. ठीक है. Yes, sir. Sir, इसकी recording sessions मिलेंगे मेरे को? I'll share each and every recording after complete the session of every day. 1 घंटे का टाइम लगता है. आई नीड टू कन्वर्ट इट एंड देन हाँ, नहीं, कोई नहीं. जी. अपलोड टू द गूगल ड्राइव और वहाँ से लिंक भेज देंगे एंड यू कैन डाउनलोड इमीडिएटली. Yeah, no worries. Okay. Fine. So this is the basic infrastructure and because I am running multiple batches VMware का, क्योंकि वो आगे चल रहे हैं और सबका जो है ना 7.0 पे है and they have a much experience like 8 to 10 है ना, तो ये थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा. जी जी. This is our VMware workstation and you know that the configuration of this machine is 32 gig of RAM and 8 core of processor. तो ठीक है, we have enough space to perform the task. Otherwise we have another ThinkPad with 16 gig of RAM. तो जब हमें HADRS वगैरह vCenter सर्वर वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो we will use the another desktop as well. बट अभी के लिए ESXi कंप्लीट करते हैं, शेयर स्टोरेज कंप्लीट करते हैं, डोमेन कंप्लीट करते हैं. Now, I have already downloaded the software. I'm talking about the ESXi 7.0. उसका सॉफ्टवेयर हम पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं. Okay. Click File, Create Virtual Machine. Next,
ब्राउज द लोकेशन, तो आई स्टैब्लिश माई ESXi 7.0, यहाँ पे हमने रख रखा है सॉफ्टवेयर इमेजेस में ऑन प्रोमाइसेस मशीन के अंदर एक ड्राइव बना करके इसमें हमने सेटअप कर रखा है. जस्ट नीड टू क्लिक हियर, सेलेक्ट एंड ओपन इट. ओपन करने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक नेक्स्ट. टाइप द नेम ऑफ योर ESXi क्लास, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू. नेक्स्ट, configuration. You should know about the configuration, basic configuration of our ESXi host. So I'm just going to proceed with 80 gig of hard drive. The minimum requirement is 140 gig, but अभी हम यहाँ पे additional storage हमें add करना है, तो that's why I'm going to add a 80 gig of space. Next, hardware configuration we wanted to sorry This is for ESXi, right? ESXi, yes. 4 GB की रैम की रिक्वायरमेंट होती है, बट आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद 8 gig ओनली फॉर द मीन्स टू परफॉर्म द टास्क प्रैक्टिकली, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा. क्लोज एंड फिनिश. इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस. ठीक है, ये आपका जो इंस्टॉलेशन का टाइमिंग है, हार्डली इट विल टेक अप टू 5 to 7 minutes. It's also depend upon the configuration that you have. सर एक नॉर्मल जैसे हम एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, सो रिगार्डिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जितना जो भी स्पेस है ये हमें क्लाइंट से पता चलता है, या वी नीड टू सजेस्ट द क्लाइंट कि इतना रिक्वायरमेंट है इस एक्सआईटी ये No, बेस्ड ऑन देयर. we are responsible to define the configuration as per the requirement of client. ओके, तो यूजुअली कितना ESXi का कितना रैम रिक्वायर्ड होता है वैसे? नहीं, इसका कैलकुलेशन एक मेथड है. ठीक है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे आप, ठीक है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे उसमें से 30%, ठीक है, 30% ऑफ हार्डवेयर आपको माइनस करके चलना है. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? नहीं, आपने 8 GB रैम, 8 GB ऑफ रैम और 4 कोर ऑफ प्रोसेसर और मे बी 500 gig ऑफ हार्ड डिस्क आपने डिसाइड किया है. ठीक है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर बेस मशीन. 8 GB रैम में से 4 कोर प्रोसेसर में से 30% हार्डवेयर आप माइनस कर देंगे इमीडिएटली. ये 30% जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका यूटिलाइजेशन होता है HADRS में, प्लस आपके ESXi को कंट्रोल करने के लिए. अच्छा, ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन है. आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैलकुलेशन. थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. अभी हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. इन्वायरमेंट में 2-3 क्लासेस थोड़ा सा स्लो चलाएंगे, उसके बाद फिर जब हमारा फ्लो आ जाएगा, जब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा ठीक है बैकएंड का कॉन्सेप्ट ये है, तब प्रैक्टिकल में हम फास्ट कर देंगे. श्योर सर. इट इज़ इन प्रोग्रेस. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें बिकॉज ओके, अब आप रियल इन्वायरमेंट में जब आप बेस मशीन पे बेयर मेटल पे इंस्टॉल करेंगे, तो आपने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ बूटेबल पेन ड्राइव. आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करनी है और उस बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉलेशन पे लगा देना है, जैसे आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन लगाते हैं विंडोज 7 और 10 का, राइट? ओके, यस. हिट इंटर टू कंटिन्यू. F11. सो F11 प्रेस करने के लिए आई नीड टू एक्सेस विद माई
बेस मशीन, क्योंकि यहाँ पे F11 काम नहीं करेगा, शॉर्टकट की काम नहीं करेगी बिकॉज आई एक्सेस थ्रू द मैक मशीन. तो जस्ट गिव मी 2 मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस इट. F11 प्रेस करने के बाद RDP फिर से हम रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि चलो ये हो गया, हमने F11 प्रेस किया थ्रू द बेस मशीन. And provide the password. Let me show you how it's look like. जब आप ESXi होस्ट पे F11 प्रेस करके एग्रीमेंट करके प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर पेज. ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. सो इन केस ऑफ पासवर्ड यू नीड टू प्रोवाइड द बेसिक पासवर्ड. कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड रख दे रहे हैं. जी. एंटर. F11 अगेन, फिर RDP हमें एक्सेस करना पड़ेगा क्योंकि F11 शॉर्टकट कीज काम नहीं करती यहाँ पे. चलो ओके. डन. इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड. यहाँ पे आप देखो 30% इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड. तो ये जितनी भी फाइल्स हैं, रिक्वायर्ड फाइल हैं टू सेटअप आवर वर्चुअलाइजेशन, जो GUI एक्सेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ फुलफिल करेगा. और जैसे ही हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, इट विल गिव अस वन प्राइवेट IP एड्रेस, एंड यूजिंग द प्राइवेट IP एड्रेस वी आर एबल टू एक्सेस द GUI ऑफ आवर ESXi होस्ट. जी. सर इसके ये सबसे इन सब चीज़ों के लिए कोई प्री रिक्विजिट है क्या पहले पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले? प्री रिक्विजिट नहीं, ESXi स्टार्टिंग है. लाइक ये चीज़. नहीं, ESXi में ESXi को प्रॉपर तरीके से मीन्स कंट्रोल और मैनेज करने के लिए आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए नेटवर्क का, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का. मीन्स अगर ये दोनों पॉइंट आपके पास है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड व्हाट वी कैन से दैट बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, then definitely you are able to properly understand about the virtual environment. ओके. तो इसमें कोई लिनक्स का कोई वो ऐसा कुछ है तो नहीं, लाइक क्योंकि हमें प्रोफाउंड होना चाहिए लाइक? नहीं, CLI का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. इट्स नॉट मैंडेटरी. लिनक्स का कोई ऐसा यूसेज नहीं है. हम थोड़ा सा आपको कमांड लाइन इंटरफेस आना चाहिए. ओके. डॉस वगैरह में जैसे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ना, वो थोड़ा सा कमांड का आइडिया होना चाहिए. Done. We successfully installed the ESXi host and see the IP address we are getting 1.4. और ये जो 1.4 IP एड्रेस है ना, ये 1.4 IP एड्रेस इज़ रिलेटेड टू द DSCP, क्योंकि हमने कोई मैनुअल IP एड्रेस तो कॉन्फ़िगर नहीं किया. तो इट मीन्स दैट वी कॉन्फ़िगर थ्रू द DSCP. और लेट मी एक्सेस द 1.4 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ इट्स लुक लाइक. 1.4 मेंशन किया वेब पे ही, वेब क्लाइंट के थ्रू. प्रोसीड टू अनसेफ. यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इंस्टॉल किया था, यूज़ किया था, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड टू लॉग इन द GUI. दिस इज द GUI आइकॉन. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास GUI आइकन है. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए VM एडमिन, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ये पॉइंट जो होस्ट, मैनेज, मॉनिटर, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये सभी पॉइंट हमें क्लियर करने हैं. इज दैट ओके? दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस सर. तो हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में इन्हीं पे डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है और कैसे हम चीज़ों को ट्रबल शूट करते हैं और कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं. गॉट इट? यस सर.
So this is day one, and we discuss about the basic understanding of your virtualization, about the concept of infrastructure and installation of ESXi host. I hope you all of you understand about the all topics. Right, sir. Yeah. Great. We'll share the recording in next 1 hour, and we'll connect tomorrow on same time 11 o'clock IST, और इसके आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? ठीक ठीक. Okay. Thank you so much. We'll connect tomorrow. Huh? Thank you, sir. Welcome. Sure, sir. Okay. Bye bye. Bye, sir. Bye bye.